A very good morning, students. Today we are going to discuss class 6, chapter 8, sorting the materials, topic magnetism. Some materials are attracted by the magnet while others not. According to magnetism, all the materials are classified into two categories: magnetic materials and non-magnetic materials. The materials that are attracted toward the magnet are known as magnetic materials. जो materials मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मेन मैग्नेट की तरफ खींचते हैं मटेरियल्स, उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल. दीज आर द मेटल दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट. That's why these materials are known as magnetic materials. Example: iron, nickel, cobalt. On the other hand, the materials that are not attracted towards the magnet are known as non-magnetic materials. जो materials magnet की तरफ attract नहीं होते, उन materials को हम क्या बोलते हैं? Non-magnetic materials. Except iron, cobalt, nickel, all the other materials are non-magnetic materials. Example of non-magnetic materials: wood, rubber, plastic, ceramic, etc. are the examples of non-magnetic materials. Natural and synthetic material. Based on the sources from which they are obtained, materials can be classified into natural and synthetic. जैसे कि हमें जो materials मिलती हैं या तो नेचर से मिलते हैं या हम केमिकल लेबोरेटरी से प्रिपेयर करते हैं. तो इस हिसाब से हम मटेरियल्स को टू टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. द मटेरियल दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर आर नोन एज द मटेरियल दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर आर नोन एज natural materials. Example of natural materials: paper, jute, coir, wood, cotton, vegetables, fruits are the examples of natural materials. On the other hand, non-magnetic synthetic materials are the material that we prepare in the chemical laboratory and factories with the help of chemicals are known as synthetic material. जो materials हम chemical laboratory में prepare करते हैं with the help of chemicals, these materials are known as synthetic materials. Now difference between the natural and synthetic material. Natural materials are biodegradable, can be decomposed by microorganism. जो natural material जो होते हैं वो क्या होते हैं? Biodegradable होते हैं. मीन जैसे कि हम नेचुरल मटेरियल्स कॉटन, वूल, अगर हम डिस्पोज ऑफ करते हैं इनको इन द सॉइल, तो ये क्या होता है? अपने आप ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से डिकम्पोज हो जाते हैं. मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको ईटिंग कर कर ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. मेन डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं. तो इसका मीनिंग क्या है? ये ईजिली सॉइल में मिक्स होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. ऑन द अदर हैंड, सिंथेटिक मटेरियल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इजिली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो सिंथेटिक मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम केमिकल लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, इनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो इनको एटिंग नहीं करते. सिंथेटिक मटेरियल्स की जब हम सिंथेटिक मटेरियल्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं इन द सॉइल, तो ये क्या करते हैं? सिंथेटिक मटेरियल्स सॉइल पोल्यूशन करते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सिंथेटिक मटेरियल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं करते इन्हें. ठीक है, मेन इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और जैसे कि हमने पॉलीथीन डिस्पोज ऑफ किया, पॉलीथीन इज सिंथेटिक मटेरियल, पॉलीथीन को हमने सॉइल में डिस्पोज ऑफ किया, तो ये क्या होगा? डिकम्पोज नहीं होगा और सॉइल में क्या करेगा? सॉइल पोल्यूशन करेगा. इसका मीनिंग क्या है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल. Examples of natural materials: paper, jute, coir are examples of natural materials. On the other hand, synthetic materials, all the plastic materials. As we know, plastic is prepared in the chemical laboratory with the help of certain chemicals, and plastic products like polythene, bags, polyester, clothes, nylon are the synthetic materials, and these materials are non-biodegradable. Now, need for sorting materials. Why do we need to sort materials? If you have visited the library, you have seen that there are racks of different books. There will be different rack of science book, different rack of math book,
different rack of history book, and it is convenient to find out any subject book according to their class. दे आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू क्लासेस, जैसे कि साइंस लाइब्रेरी में क्या होता है, साइंस सब्जेक्ट का रैक अलग होगा, और फिर फर्दर उस साइंस सब्जेक्ट में उन्होंने क्लासेस के हिसाब से क्लासिफिकेशन की होती है, और मैथ का जो रैक होगा वो सेपरेट होगा, और उसी रैक में क्या होगा, क्लासेस के हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशन की होती है, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, अप टू 10th क्लास तक, 12th क्लास तक, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर आपको साइंस की बुक चाहिए 6th क्लास की, तो आप इजीली वहाँ पर जाकर फाइंड आउट कर सकते हो। आप क्या करोगे, साइंस साइंस रैक रैक पे जाओगे और 6th क्लास वाला कॉलम देखोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 6th क्लास की साइंस बुक इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। अगर क्या करते हैं हम, सभी बुक्स को इंटरमिक्स करके रखते हैं, मतलब वहाँ पर कोई सॉर्टिंग नहीं करते, तो अगर आप कोई बुक फाइंड आउट करने चाहते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको 30 मिनट टू 1 आवर लग जाएगा किसी बुक फाइंड आउट करने के लिए। तो इसलिए क्या होता है, जो सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स होते हैं, हमें कुछ भी फाइंड आउट करने में, मतलब कोई जो मटेरियल फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। वी कैन कन्वीनियंटली फाइंड आउट द नीडेड मटेरियल। सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल हेल्प यू टू लोकेट अ सुइटेबल मटेरियल व्हेन एवर यू नीड, ठीक है। जैसे कि सॉर्टिंग, जैसे किसी मटेरियल्स को हमने सॉर्ट करके रखते हैं, तो हम उस मटेरियल को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें नीड होती है। सेग्रीगेटिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट इजी टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ग्रुपिंग देम एज देयर सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। जैसे कि हम क्या करते हैं साइंस में, टेक द एग्जांपल ऑफ साइंस, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स की जो स्टडी होती है साइंस में, वो क्या होती है, फिजिक्स। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मशीनरी होती है जितनी, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। तो उन्होंने सिमिलरिटी क्या है, वो सभी की सभी मशीनरीज के बारे में होती है। और ऑन द अदर हैंड, जैसे केमिकल्स के बारे में स्टडी होती है, तो वो क्या होती है, केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब उनकी जो सिमिलरिटी है, डिससिमिलरिटी के हिसाब से उनको हम क्लासीफाई करते हैं। लिविंग थिंग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं, कुछ सिमिलरिटीज, सभी लिविंग थिंग्स में कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि वो ब्रीथिंग करते हैं सभी, ठीक है। तो सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के हिसाब से को उनको स्टडी करना क्या होता है, ईजी हो जाता है। दिस हेल्प्स इन कन्वीनियंट स्टडी ऑफ मटेरियल, जिससे क्या होता है, हम कन्वीनियंटली स्टडी कर सकते हैं, मतलब वेरी इजीली स्टडी कर सकते हैं मटेरियल्स की। In the end, why do we sorting of material help you to locate suitable material whenever you need.